नमस्कार। संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सुधार की दिशा में लगातार प्रयास होते रहे हैं और जरूरी कदम उठाए जाते रहे हैं। चुनाव सुधार की दिशा में जारी सतत प्रक्रिया के तहत संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में चुनाव सुधार को लेकर अल्पकालिक चर्चा हुई, जिसमें सभी प्रमुख दलों के सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस अहम चर्चा के प्रमुख अंश। Now, short duration discussion on the electoral reforms. Honorable Deputy Chairman, sir, it has been very timely thinking from the part of the Parliament that electoral reforms have been taken up as a matter of discussion. The Indian democracy is considered as the world's largest democracy in terms of size, but when it comes to the question of quality, the World Press Organization has ranked it 68 in 2014 and up from 70 in 2012. A small country like Norway has been ranked first in the quality of democracy and Switzerland second. Thus, there is a lot of room left to improve upon the system of electioneering in India and improve upon system of democracy that can fully reflect the people's will. The Election Commission of India, as the guardian of free and fair polls, has always been proactive in removing obstacles in the way of free and fair polls. It has made a number of recommendations and repeatedly reminded the government the necessity of changing the existing laws to check the electoral malpractices. The Tarakunda Committee report of 1975, the Goswami Committee report of 1990, the Election Commission's recommendation in 1998, and the Indrajit Committee report of 1998 produced a comprehensive set of proposals regarding electoral reform. The Election Commission of India by itself has been trying to bring improvements in election procedure, and the introduction of electronic voting machine has brought revolutionary change, promising free and fair polls. While EVMs have improved efficiency in voting, it is believed to have reduced malpractices. The EVMs were first tried in the state of Kerala during the year 1982 Legislative Assembly election. After the successful testing and inquiries of the technology aspects, EVMs were used in 16 assembly constituencies in the state of Madhya Pradesh, Rajasthan and Union Territory of Delhi. Later in the June 1999 assembly election, Goa became the first state to successfully use EVM in all its assembly constituencies. In 2014 Lok Sabha election, the machines were used all over the country. These initiatives made the electoral process simple, quick and troubleful. It has saved money, solved several logistic issues and also contributed to the conservation of environment through the saving paper. Another major advantage of these machines is that the counting of votes become more fast and accurate. But unfortunately, now the political parties recently have raised doubts about the functioning of the EVM machines. And these create doubts in the minds of millions of Indians whether these machines are really managed and manipulated and whether these machines alternate the vote cast by the people. To me, the Election Commission of India should take appropriate care of this concern to assure the people that EVM are not hindrance to true reflection of people's will and it cannot be tempered to alter result to one's advantage. However, talking about the ongoing reform, the use of information technology enabled the Election Commission Secretariat to get directly connected with nearly 1,500 counting centers across the country in the 1999 Lok Sabha polls. Another major step was in computerization of the electoral rolls in 1998, where in the printed electoral roll, as well as CDs containing these rolls were made available to the general public and national and state parties. By 2009 general election, the Election Commission also decided to introduce photo electoral rolls for proper verification of the voters across the country.
So India has continuously witnessed electoral reforms and upgradation of its democratic process. But there is still a need to make it more relevant and responsive. There was a long-standing demand to make the Election Commission a multi-member body. It also conforms to the tenets of democratic rules. With the 1993 Constitution Amendment Act, the Election Commission was made a multi-member body. To my opinion, it is now time that we have moved a step ahead and make the Election Commission of India more democratic body. The Election Commission of India is absolute, and there is no regulation in its functioning, especially during the course of the election. If there arise any grievances against the functioning of the Election Commission, there is no mechanism to address. Another important aspect which I want to deal with, and I am sure every member in the House is keen, is that of election funding. Sir, limiting cash donation rupees 2,000 and introducing election bonds has an attempt towards cleansing the funding system. But electoral reforms announced in the budgets are actually not what they are claimed to be. This needs to be clarified. Otherwise, it will breed controversies. Finance Minister has talked about electoral bonds, but the part that says about the redemption of bonds are not clear. I would propose the House to consider state funding for funding the election, and these will bring about restriction in matters of election expenditure, while maintaining accounts would be an easier and transparent affair. A corpus under the management of the Election Commission can be formed, and the funds from the state corpus can be distributed according to the principles and guidelines of the RC. But the broad principle of the distribution should be based on the theory of proportionate distribution, and that can be availed by the candidates of the registered party in equal position. Thank you very much. Now, Shri Ghulam Nabi Azad. माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं चेयर को बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़े अरसे के बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हो रही है। सर, भारत को गौरव है कि 1951 से लेकर जितने भी इलेक्शन हुए, लोकसभा के, पार्लियामेंट के, और एक संवैधानिक जिम्मेदारी यहाँ की सरकार और इलेक्शन कमीशन विशेष रूप से निभाता रहा और सबको इंसाफ और न्याय देने का प्रयास किया है इलेक्शन कमीशन में। और हर इलेक्शन में आबादी भी बढ़ती गई, जिसके कारण वोटों की संख्या भी बढ़ी गई। हम सीखते रहे, भारत सीखता रहा, वोटर सीखते रहे, इलेक्शन कमीशन सीखता रहा, सरकार सीखती रही, कैंडिडेट सीखते रहे। और खुशी इस बात की है कि लोगों का उस विश्वास जो हमने पहले इलेक्शन से प्राप्त किया था, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जब कभी भी किसी कॉर्नर से जब भी कोई सुझाव आया, उस सुझाव को इलेक्शन कमीशन ने कंसीडर किया और उसको लागू करने का प्रयास किया और सरकार ने और विपक्ष ने मिलकर उसका समाधान निकाला। हमें यह भी गौरव है कि विश्व के बहुत सारे देशों ने हमारे संविधान और हमारे इलेक्शन लड़ने के तरीके को समझा और अपने अपने देशों में अपने तरीके से उसको कॉपी करके उसको लागू किया। ये बड़ी गौरव की बात, और यही कारण है कि आज हमारा भारत विश्व में सबसे लोकतांत्रिक बड़ा देश माना जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा हम कुछ सीखते हैं। इस बीच में मसल पावर का भी बहुत इस्तेमाल हुआ। एक वक्त था कि बहुत शिकायतें आती थी
मनी पावर की शिकायतें आती थी और इस मसल पावर से निपटने के लिए एक हल निकाला जा कि ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए और मनी पावर का इस्तेमाल न हो। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, एक मेंबर पार्लियामेंट कितना खर्च कर सकता है। तो इसमें ये तय हुआ कि गरीब से गरीब भी उतना ही कैंडिडेट खर्च कर सकता है और अमीर से अमीर भी। ये बहुत एक अच्छी बात हुई। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स 1998 से और 1999 में शुरू में कुछ जगह पे शुरू हुई, 5-5 असेंबलियों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इस तरह के 1-2 राज्यों में, और 2002 के विधानसभा और 2004 के पार्लियामेंट से आज पूरे देश में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा हमने 1951 से लेकर और अभी तक हम सीख रहे हैं इलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को भी हम अभी सीख ही रहे हैं। ये भी एक नई चीज है। बहुत सारे हमारे सिस्टम में परिवर्तन लाया गया। अलग अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने और कमीशन ने अलग अलग सुझाव लाए, उनको इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा भी कई सुझाव आए थे। स्पेशल कमेटी अपॉइंट हुई थी जिसमें इलेक्टोरल फंडिंग की बात हुई थी। मैं चाहूँगा कि माननीय लॉ मिनिस्टर साहब अपने जवाब में इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में भी बताएं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। एक बहुत बड़ा प्रश्न पिछले कुछ सालों में, विशेष रूप से 3 साल पहले उठा। कैंडिडेट कितना खर्च कर पाएगा विधानसभा और लोकसभा का, वो तो निर्धारित हुआ। पहले जो कैंडिडेट खर्च करते थे, जब उन पर कोई अंकुश नहीं था, कोई 100 करोड़ 200 करोड़ और कोई 2 लाख, अब वो सिस्टम कैंडिडेट से हटकर जब अंकुश लगा उसे कैंडिडेट को, वो अब पार्टी में चला गया। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो हमने हब एंड स्पोक पॉलिसी की थी। हब एंड स्पोक पॉलिसी थी कि छोटे एयरपोर्टों से छोटे जहाजों में लोगों को, पैसेंजर्स को उठा लो और बड़े जगह लो और उनको बड़े जहाज में भरो और आगे भेज दो, या बड़े जहाजों से लोगों को लाओ और फिर उनको छोटी जगह भेजना है तो दिल्ली में या दूसरे जगह बम्बई में उनको छोटे जहाजों में भरो और वो अपने अपने छोटे एयरपोर्ट पे। दैट वाज हब एंड स्पोक। नई जो हमने हब एंड स्पोक पॉलिसी 1992-93 बनी, वो अभी मुझे बिहार में और यूपी के इलेक्शन को बड़े पैमाने पे, जहां 60 जहाज और हेलीकॉप्टर, 70 80 जहाज और हेलीकॉप्टर हब एंड स्पोक कर रहे हैं लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये मैं समझता हूं ये इसमें तो इम्बैलेंस हो गया। पैसे लगने में उसमें कितने लगते हैं, कैंडिडेट आप 10 लाख करें, 5 लाख, लेकिन यहां तो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ इसमें। ये हमने 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन देखा और वो बराबर चलता रहा है। तो इस सूरत में कोई इलेक्शन, माननीय चेयरमैन साहब, कोई लड़ नहीं सकता है, कोई लड़ नहीं सकता। एक पर्टिकुलर पार्टी ही लड़ सकती है जिनके पास पैसा हो। इसलिए मेरे ख्याल में इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए, इस पे किस पार्टी के साथ, जो नेशनल पार्टीज हैं उसकी सीमा भी इतने हेलीकॉप्टर लगा सकती है, इससे ज्यादा जहाज नहीं लगा सकती। पब्लिक मीटिंग के लिए कितने करोड़, एक पब्लिक मीटिंग के लिए 5 करोड़ आप खर्च करो, आप पूरे स्टेट से जमा करके लाओ या पूरे हिंदुस्तान से जमा करके लाओ, वो कहीं दिखा नहीं है। और फिर ये खर्चा सब पार्टी का, इसका ऑडिट होना चाहिए और पार्लियामेंट के पटल पर रखना चाहिए कि किस पार्टी ने कितने जहाज, कितने हेलीकॉप्टर, कितने रैलियों पे खर्चा किया। तब मैं समझता हूं कि पारदर्शिता आएगी। सर, इसी तरह से
एक अच्छी उम्मीद के साथ कि भाई अगर मसल पावर को लाना है, ख़त्म करना है तो ईवीएम सिस्टम। लेकिन इस ईवीएम सिस्टम पर भी अब कहीं न कहीं शक बढ़ गया। लोग मायावती जी पहली, उससे पहले बम्बई के इलेक्शन हुए, उसमें हमारे सभी पार्टीज के लोगों ने बात की। मायावती जी ने बड़े पैमाने पे किया फिर, और उससे पहले असम के गोगोई जी ने लास्ट ईयर इस पे बात की थी, शक उठाया था कि ये ईवीएम में गड़बड़ है। तो मैं सोचना चाहता हूं कि बहुत सारी कंट्रीज ने जिनमें ईवीएम शुरू किया था, ईवीएम मशीन्स का, इलेक्ट्रॉन, उनमें से जर्मनी से लेकर इटली से लेकर ये दुनिया भर के कंट्रीज ने, उन्होंने इस सिस्टम को बंद किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, इसमें शक है और इसको दिखाना चाहिए। और इसके लिए भी जब हमारे वक्त में ये इस पर बहस हुई थी कि एक मशीन है जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, वो लगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये हुआ। और उसके बाद ये कई जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल इसलिए कम जगह पे हुआ क्योंकि आपको बहुत पैसा लगेगा। हमारे तुरंत जाने के बाद ही 2014 में इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि उनको 16 लाख ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल लगाने के लिए 3,100 करोड़ रुपया चाहिए। और उस दिन से 2014 से लेकर जनवरी 2017 तक इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को 10 रिमाइंडर्स भेजे। और अभी जो पेपर इंडियन एक्सप्रेस में आया कि 2-4 महीने पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को SOS भेजा। क्या इसमें गड़बड़ नहीं दिखता आपको? ये 16 लाख VVPATs लगाने के लिए आपको 2 साल लगते हैं, 2 से 3 साल लगते हैं। अगर आपने 2014 में किया होता तो अभी 2 महीने में या यूपी के इलेक्शन में भी ये लग गया होता। और मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो तुरंत इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा में, उसमें आप लोगों को एक चीज करना, जितनी जगह पे आपके ये मशीन्स अवेलेबल हैं उतनी करिए, बाकी जगह से आप बॉक्स के जरिए करें। बिल्कुल ठीक। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, आज 20% किसी को वोट मिलते हैं, कैंडिडेट वो आपका हो, मेरी पार्टी का, वो जीत जाता। लेकिन इस सिस्टम से बहुत सारे देश फर्स्ट पास टू पास वो सिस्टम चले गए। भारत के लोकतंत्र में जिस तरह से भी, जहां से भी सुझाव आए हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इलेक्टोरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए, वो सुझाव हमेशा माने हैं। और भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा रहे, इसके लिए हमने प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार भी उस दिशा में कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। All right. राज्यसभा में चुनाव सुधार को लेकर हुई अहम चर्चा अभी जारी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जारी है संसद संवाद। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का विषय है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण अगर हमने 3 महीने किसी भी राज्य में लोकसभा चुनाव में लगा दिए, फिर 3 महीने हमने विधानसभा चुनाव में लगा दिए, फिर 3 महीने हमने म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव में लगा दिए, फिर 3 महीने हमने जिला परिषद के चुनाव में लगा दिए, और फिर बाकी के 6 महीने अगले चुनाव की तैयारी में लगा दिए, तो सरकार को गवर्नेंस करके सरकार को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर कहां मिलता है? People say that veteran parliamentarians don't retire. So I'll be active in politics.
Why should I retire? What do you think is the biggest reason for this increasing disruption amongst the parliamentarians? Why they are not allowing the parliament to function? That agreement to disagree, that is not coming here. That dialogue is not there. What is your hunch for the 2019 elections? It will be a tough fight for both sides. That is going to be For all the parties, you are saying, yes, including Congress. Yes. Watch to the point with former Deputy Chairman of Rajya Sabha, PJ Kurian, only on Rajya Sabha television. संसद संवाद में आप देख रहे हैं चुनाव सुधार पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा के महत्वपूर्ण अंश। आइए देखते हैं चर्चा का अगला भाग। Now, Shri Bhuvendra Yadav. सम्मान्य उपसभापति महोदय, ये जो देश का लोकतंत्र आज बहुत मजबूती के साथ चल रहा है, उसका कारण संसद की सर्वोच्चता तो है ही, हमारा गतिशील संविधान तो है ही, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी बनी हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारे यहाँ सेना गैर राजनीतिक है और हमारे यहाँ चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है। ये सदन इस बात को भी मेरे को लगता है बधाई दे कि इस देश में जो चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता है वो कोई कानून नहीं है, वो राजनीतिक दलों की परस्पर सहमति है। ये लोकतंत्र सबने मिलकर के बड़ा किया है और इसलिए चुनाव आयोग का जो आज जो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव आयोग है, इस प्रश्न का जवाब इसी बात से जाना जाता है कि जो ईवीएम मशीन होती भी हैं वो जिस राज्य में चुनाव हो रहा होता है वहां के कलेक्टर के पोजीशन में होती है और इसलिए निष्पक्षता है कि अगर चुनाव से पहले पंजाब में अकाली दल की सरकार थी तो निश्चित रूप से उनके शासन के अंदर थी, वो चुनाव में उन्होंने विनम्रता के साथ मैंडेट को स्वीकार करा। उत्तर प्रदेश में थी तो वहां की जो तत्कालीन सरकार थी उनके पोजीशन में, उनके प्रशासनिक पोजीशन में थी। बिहार में जो थी वहां के प्रशासनिक पोजीशन में थी। और जब दो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक का है, ऊपर से मॉनिटरिंग चुनाव आयोग की है, तो हमको सबको चुनाव आयोग की निष्पक्षता को स्वीकार करना होगा। ये देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है, हर 3 महीने में चुनाव है, हर 4 महीने 6 महीने में 3 राज्यों का, 4 राज्यों का, 6 राज्यों का चुनाव होता है। और मैं अपने प्रदेश से उदाहरण देना चाहूँगा कि अक्टूबर में जब हमारे प्रदेश में चुनाव थे तो जुलाई अगस्त में आचार संहिता आई, अक्टूबर में चुनाव हुए, दिसंबर में सरकार बनी, जनवरी में आचार संहिता को काम शुरू किया तो फरवरी में लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए तो पंचायत के चुनाव। एक राज्य में 1 साल से ज़्यादा जो है वो आदर्श आचार संहिता लगती है तो 5 साल में गवर्नेंस के लिए पूरे देश को, देश में 5 साल में एक बार चुनाव हो, साइमल्टेनियस चुनाव के बारे में सोचना हो। और ये जो साइमल्टेनियस चुनाव है, ये साइमल्टेनियस चुनाव ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने विषय में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विभिन्न फोरम्स पे, मंचों पे ये कहा है कि देश में साइमल्टेनियस चुनाव होने चाहिए। और इसी संसद की समिति में उस तरफ से नचियप्पन साहब उस समिति के चेयरमैन थे, मैं भी उस समिति में सदस्य था। हमने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस दिया, राज्य सरकारों को दिया, चुनाव आयोग को दिया और दिसंबर 2016-17 में वो ये चुनाव आयोग की जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट 2015 में इस सदन में भी प्रस्तुत हुई और उसमें एक व्यवहारिक रास्ता भी निकाला गया क्योंकि ब्रिटेन में भी उन्होंने अपना जो असेंबली है उसका समय तय किया। हमारे देश में चूंकि 29 राज्य हैं तो इस रिपोर्ट में भी कहा कि 16 राज्य और 19 राज्य 2 भागों में 2.5 साल के अंतर्गत एक निश्चित टर्म के अंदर क्या हम चुनाव कर सकते हैं। क्या इस देश को हमेशा चुनाव लड़ने का देश बनाना चाहते हैं या चुनाव के द्वारा सरकार चुन के 5 साल में स्थायी विकास के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं। और जब 5 साल में साइमल्टेनियस चुनाव इस देश में होंगे उसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि राजनीतिक दलों के खर्चे में भी बचत आएगी। और मैं यहाँ ये कहना भी चाहूँगा
कि हमारे दल ने या किसी भी दल ने कितने हेलीकॉप्टर रखे, पूरा एक एक पाई का हिसाब ऑडिट के साथ चुनाव आयोग के सामने है। वहां जाकर के देखिए, उसके बाद कोई आरोप लगाइए। दूसरा विषय राजनीतिक दलों की फंडिंग का विषय है, और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने फंडिंग के लिए 20,000 से सीमा को घटा करके 2,000 रुपए किया है, उसका स्वागत करता हूं। और पहली बार हमने देश में ऐसा प्रावधान किया है कि हमने पॉलिटिकल बॉन्ड की बात करी है। राजनीति में अंडरकट होके पैसा नहीं आना चाहिए। जिस राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलता है उसका हिसाब किताब वो जनता का पैसा है, और इसलिए हम जो पॉलिटिकल बॉन्ड की बात लेकर के आए हैं, जो गांधी जी ने कहा था कि ये ट्रस्ट का पैसा है, लोगों का पैसा, ये पब्लिक ट्रस्ट का पैसा है, इसका हिसाब होना चाहिए, और इसलिए उसको हमने पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से देश में नए परिवर्तन की शुरुआत करी है। यहां पर सभी राजनीतिक दलों को इस बात का सुझाव जरूर देना चाहिए कि आगे और कौन से सुझाव हो सकते हैं जो काले धन का राजनीति पे खात्मा करने के लिए और काले धन का प्रभाव समाप्त करने के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक विषय और कहना चाहता हूं, जो साइमल्टेनियस चुनाव का विषय है। चुनाव आयोग के सामने भी हमारी पार्टी ने एक विषय रखा था कि संवैधानिक व्यवस्था के कारण राज्य चुनाव आयोग जब लिस्ट तैयार करते हैं, वोटिंग लिस्ट तो अलग होती है, लोकसभा में तैयार करते हैं तो वोटिंग लिस्ट अलग होती है। और कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि जो लोकसभा में जिस पोलिंग बूथ पे वोट डाला होता है, पता पड़ता है विधानसभा में 3 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ चला गया। और ये जो सूची प्रकाशित होती है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा कि मियरली द नेम ऑफ द लिस्ट इज नॉट सफिशिएंट, वो जब तक फाइनल एक बार साइन होने के बाद अगर आपके पास आईडी प्रूफ भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम कट गया, अब मेरा नाम जुड़वा दीजिए। तो क्यों नहीं हम उस संवैधानिक संशोधन को करके सारी वोटिंग लिस्ट जो मतदाता सूची है वो एक ही रखें। एक व्यक्ति के पास परमानेंट एक नंबर होना चाहिए कि ये मेरा मतदाता नंबर है। अगर वो कभी अपने ट्रांसफर से कहीं बाहर जाना चाहता है, किसी और जिले में जाना चाहता है, तो अपना मतदाता नंबर ट्रांसफर करा के वहां रजिस्टर्ड करा दे, और रजिस्टर्ड करा के कह दे कि अब मेरा मतदाता नंबर जो है ये इस राज्य में रजिस्टर्ड है। आज तो वो टेक्नोलॉजी है। हमने जब चुनाव आयोग को कहा तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसके लिए भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन एक और दूसरा विषय है जिसको सब लोगों को बड़े मन के साथ स्वीकार करना चाहिए कि ये देश उत्सव प्रिय देश है, ये देश मेलों का देश है, ये देश त्योहारों का देश है। चुनाव तो ऐसा बना दिया है जैसे चुनाव ना हो रहा हो, कोई एकदम कोई सूखा आ गया हो, कहीं लगता ही नहीं है। और हम कई बार तो इस प्रकार से नियमों के अंदर बंद जाते हैं कि अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं कर सकते। इस देश के संविधान में लिखा है अनुच्छेद 19 में, जब तक कोई विषय या विचार पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, देश के खिलाफ ना हो, मॉरलिटी के खिलाफ ना हो, उसको एक्सप्रेस करने से कैसे रोक सकते हो आप। और कोई अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार है, वो अगर मान लीजिए बहुत सारे ढोल बजा के अपना प्रचार करना चाहता है तो वो तो परमिशन लेने में उसका समय चला जाता है। इस देश में चुनाव को करने का तरीका, सभाओं का तरीका कोई एक जैसा हो नहीं सकता। सबकी अपनी परंपराएं हैं। हम अपनी परंपराओं को जब चुनाव के साथ जोड़ेंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार एक बहुत अच्छा काम किया कि जो सेना के जो सैनिक वोट डालते थे, इससे पहले जो पोस्टल बैलेट जाता था वो उनके छावनी तक पहुंचता था, उसके बाद वो वापस पोस्ट किया करते थे। इस बार उन्होंने ई बैलेट का नियम संशोधन किया, डाउनलोड करने का संशोधन दिया। लेकिन हम लोगों को भविष्य में आने वाले समय में जितनी टेक्नोलॉजिकल क्रांति आ रही है, ई बैलेट की तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सके, इसके लिए माहौल को खड़ा करना पड़ेगा। संसदीय लोकतंत्र को दोष रहित और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव सुधार पर चर्चा भी जारी है। इस सार्थक संवाद में अन्य सदस्यों की राय जानने के लिए देखते रहिए अगला अंक। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो बंदे तो गिने जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल
चुनाव आयोग और सरकारों को हमेशा तौला जाएगा। धन्यवाद।